say the next topic, drift velocity. So let us see what is drift velocity. देखो कोई भी मेटल है, कोई भी जैसे वायर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आर randomly moving, colliding with each other, ठीक है ना, and their direction, speed, etc. are changing. So if we do not apply any battery, no battery is connected, then the average velocity of all electron is zero. ठीक है. So metal consists of large number of free electrons. At room temperature they possess thermal energy. Room temperature में heat energy they gain electron, and due to this they are in a state of random motion. Random motion कोई इधर ऐसे random motion in all possible directions with all possible velocities, having maximum speed of 10 to the power 6 meter per second. Each electron has different speed. The average of all the thermal velocity of all free electrons inside the conductor is called average thermal velocity. So V is equal to V1 plus V2 plus so on Vn by n. As there are about 10 to the power 23 free electrons per cc in metallic conductors, and all electrons are moving in different directions, so their average velocity is zero. Vector sum of all is zero because their direction is random. And in the absence of electric field, मतलब जब when battery is not applied, the free electron does not constitute current. तो free electron current constitute नहीं करता. अगर कोई ऐसे ही metallic wire रखा हुआ है तो उसमें से कोई current नहीं flow करता, ठीक है, क्योंकि उनकी average thermal velocity zero है. नाउ अब बैटरी अप्लाई करने से क्या होता है? सपोज भी अप्लाई है बैटरी इधर वोल्टेज V, तो ये प्लस से माइनस की तरफ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड. देखो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इससे कोलाइड करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर हो गई, फिर इससे कोलाइड किया, ऐसे रेंडमली मूव करेगा, तो एवरेज जीरो होती है. बट जब बैटरी से कनेक्टेड होगा तो कोलिजन के बाद इसकी ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा इधर ड्रिफ्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा ये, ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा ईच कोलिजन में हल्का हल्का ड्रिफ्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में मूव कर जाएगा, ठीक है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो पाथ स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कोलाइड करेगा, स्ट्रेट लाइन सो ऑन. बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है तो थोड़ी सी पैराबोलिक पाथ होगी, इसके ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड होगी, ठीक है. सो लेट अस सी दिस. व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, this electric field is applied, the electrons get accelerated in a direction opposite to the electric field. देखो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेलरेट होगा opposite to the electric field and its velocity increases, क्योंकि बैटरी प्रोवाइड करने से वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, but only during short time because of frequent collisions against the ions in the metal. जैसे वो इलेक्ट्रॉन स्पीड गेन करेगा बैटरी से, वैसे ही तुरंत कोलाइड कर देगा, फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर ऐसे चलता है. The ions in the metal. The net result is that in addition to their random motion, the electrons acquire a small velocity towards a positive end of the conductor called drift velocity. तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड ड्रिफ्ट करेगा ये, ठीक है. Thus drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an electric field. Its value is of the order of 10 to the power minus 5 meter per second. बहुत कम होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, काफी टाइम लगता है एक एंड से दूसरे एंड में जाने में, ठीक है. नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन टाइम tau. It is the average time interval between two successive collisions between an electron and ion. दो इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम होता है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. तो सबकी एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विल बी T1 plus T2 to Tn by n, ठीक है. इन गुड कंडक्टर्स tau डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो कोलिजन जल्दी होगा, तो इससे क्या होगा, ये गुड tau डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है ना. ये tau है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस. नाउ नेक्स्ट सी दैट नोट, ये स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड, ये थर्मल स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द मेथड.
The speed of random motion is determined by temperature and is given by, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी. तो how it is determined? Kinetic energy of electron half mv square is equal to 3 by 2 kT. You know that degree of freedom में कराया हुआ है thermodynamics में, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT होती है. एक मोनो एटॉमिक एटम लेंगे सिंगल तो 3 by 2 kT. तो 2 कैंसल, वेलोसिटी अंडर रूट 3 kT by m. 3 k Boltzmann's constant, where k is Boltzmann's constant. K has a value 1.23 into 10 to the minus 23. रूम टेम्परेचर सपोज अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 प्लस 27 300 केल्विन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31. ये सॉल्व करके 1.16 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज अ रफ वैल्यू. So we get this. I think it is clear. So now let us see the two derivations. Number one, expression for drift velocity of electron under the influence of an electric field. What does it mean? कि अगर ये कंडक्टर है और यहाँ बैटरी से कनेक्टेड है तो we are applying electric field moves from positive to negative. Then we have to find the expression for drift velocity. ठीक है? Now, when a conductor is placed in an electric field, the free electrons experience a force. अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी? You know that force is QE. तो यहाँ पे Q की जगह E है, so force is E into E. Now, जब ये मूव करेगा फोर्स लगेगा, it will produce acceleration, and you know that force is also ma. So this force produces an acceleration A in each electron, and we know force is ma. So equating these two, ma is equal to E into E, so acceleration A is E by m. So this is an acceleration acquired by the electron in presence of electric field. Now since electron is accelerated for an average time interval t, tau, दो कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है that is called tau. तो जैसे स्पीड गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे कोलाइड करेगा टेम्परली, फिर स्पीड जीरो हो जाती है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, फिर दूसरे से कोलाइड होगा तो कोलिजन के वक्त स्पीड थोड़ी जीरो हो जाती है, फिर ऐसे चलता है. सो दैट इज since electron is accelerated for an average time interval tau, therefore the additional velocity acquired by the electron, additional velocity क्या होगी? v is u plus at. तो vd, तो रेस्ट से स्टार्ट होता है 0 plus a tau, so vd is a की वैल्यू we know e by m into tau. So this is the relation between drift velocity and relaxation time tau. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड होता है तब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, क्योंकि धीरे धीरे मैंने बताया था अभी कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे ड्रिफ्ट करता है. ठीक है कि नहीं? क्योंकि जैसे दूसरे से कोलाइड करता है फिर स्पीड जीरो होती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ थोड़ा पैराबोलिक हो जाती है, तो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. That is proof that I is equal to NEAVD. तो how to derive it? देखो बेसिक आइडिया ये है कि we know that करंट होती है चार्ज बाय टाइम. ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड में जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इज डिस्टेंस लेंथ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, L by dv. तो टाइम आ जाएगा और चार्ज निकाल लेते हैं. ये मेटल वायर है, कंडक्टर है, एरिया ये लेंथ L है, तो इसमें चार्ज कितना ये निकाल लेंगे डिराइव करें तो डिवाइड करके आ जाएगा. तो लेट अस सी दैट. Let a conductor of length L and area of cross A across which a constant potential difference V is applied. तो ये कंडक्टर लेंथ L का एरिया ये है, तो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा. और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराया इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बाय डिस्टेंस होता है, कराया था ना, E is minus dV by dr. तो E is minus V by m. अब निकाल ले कि इसमें कंडक्टर में कितनी चार्ज है. देखो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज एरिया इनटू लेंथ. ठीक है? If n is the number of free electrons per unit volume, small n is the number of electrons per unit volume. तो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा? Al into n. तो if n is the number of free electrons per unit volume of the conductor, then total number of free electrons in the conductor. तो total number of free electrons कितना हो गया? Al into n हो गया. And if E is the charge of each electron, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतने हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? Into E. So if E is the charge of each electron, then total charge on all free electrons is equal to ALNE. ठीक है? Now, due to this electric field, the free electrons present in the conductor will begin to move with a drift velocity Vd towards the left hand side.
तो अभी मैंने बताया कि ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरी एंड तक ड्रिफ्ट होगा, तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर, टाइम इज डिस्टेंस लेंथ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, hence we know that current is charge by time. Charge we have already calculated a l n e, and time L by VD, length cancel हो गया, so I is NE VD, that is the proof. That's a very very important derivation. Now I am showing by two diagrams कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है, बैटरी से नहीं कनेक्टेड है, तो मेटल के अंदर जो मूवमेंट होता है तो कोलिजन के बीच पाथ स्ट्रेट होता है, इधर कोलाइड किया इधर किया, रैंडम और एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, जो भी मैंने बताया था. बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज इधर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सीधा जाके, बट इसकी ड्रिफ्टिंग थोड़ी सी पैराबोलिक होती है, बट यहाँ तो हमने इलेक्ट्रॉन इधर लिया है तो इधर मूव करेगा तो धीरे 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 पैराबोलिक पाथ होती है. तो ये डायग्राम शो करता है कि कब बैटरी लगी होगी तो पैराबोलिक होगा, बैटरी नहीं लगी होगी तो स्ट्रेट पाथ होगा. ठीक है. सी द टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ये बहुत इजी था, सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आया, लास्ट ईयर ऑल इंडिया जेई मेंस में भी आया. तो ये क्वेश्चन जेई मेंस का है. ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर स्क्वायर इज v. ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड है ये. इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज in copper is 9 into 10 to power 28 per meter cube, the value of v in millimeter per second is close to, ये चार ऑप्शन है, 0.2, 3.2 and 0.02. कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है. we know that I is NEA VD, VD is equal to I by NEA. I given है 1.5 एम्पियर, n number density given है 9 into 10 to power 28, charge of electron we know 1.6 into 10 power minus 19, एरिया गिवन है 5 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 5 इंटू 10 टू पास माइनस 6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, एंड ये सॉल्व करके 0.02 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर. अनदर क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बेस्ड है. ये ए मेटल ऑफ 5 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास 60 एंड एरिया दिस एंड लेंथ दिस. ये मेटल की वायर है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, एंड डेंसिटी 5 इंटू 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. Find number of electrons per unit volume. Number of electrons per unit volume if every atom contributes one free electron. Number of electrons per unit volume means we have to find number density n. ये small n find करना है. ठीक है. And also find the drift velocity of electron. Also find the drift velocity of electron when current of 16 ampere passes through it. Given Avogadro's number is given 6 into 10 power 23 per gram mole. तो mass of metal piece. तो हमें नंबर डेंसिटी फाइंड करना है, तो ये निकाल लें. नंबर ऑफ एटम्स 5 ग्राम में कितने, पहले मास ऑफ, पहले ये देख लेते हैं. मास ऑफ मेटल पीस, मास क्या होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी. एरिया गिवन है 10 टू पावर माइनस 6, लेंथ गिवन है 1, एरिया गिवन है, लेंथ 1 मीटर गिवन है, एंड डेंसिटी इज गिवन 5 इंटू 10 टू पावर 3. ये मेटल की डेंसिटी गिवन है, ये सॉल्व करने पे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 kg, दैट इज 5 ग्राम. ठीक है. तो अब 5 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो हमें पता है एवोगाड्रो नंबर बाय डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू 5. तो एवोगाड्रोस नंबर इज 6 into 10 to power 23 by atomic mass 60 into 5. It comes out to be 5 into 10 to power 22. ठीक है. सो नाउ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया इतने, और टोटल वॉल्यूम मेटल की क्या है, एरिया इंटू लेंथ. एरिया 10 टू पावर माइनस 6 है, लेंथ 1 है, सॉल्व करके 5 इंटू 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब आ गया. सो दिस इज द आंसर. नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आई बाई एन ई है. आई गिवन है 16, ये आई क्वेश्चन में गिवन है 16, ये देखो 16 एम्पियर गिवन है. And just now we have calculated 5 into 10 power 28 charge of electron we know, area given है, solve करके 2 into 10 power minus 3 meter per second. You see the value, drift speed बहुत slow होती है. Next topic, next छोटा topic, दो small definition, electron mobility. ये डिटेल पढ़ना है सेमीकंडक्टर चैप्टर में, बट यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, इसलिए इसे अभी करा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, it is defined as magnitude of drift velocity per unit electric field applied. कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ती है. मोबिलिटी, मोबाइल मतलब मूव करना,
तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नाउ वी नो दैट ड्रिफ्ट स्पीड इज ई बाई एम इंटू टॉ, अभी कराया था मैंने थोड़ी देर पहले, ई एम बाई टॉ, एंड दिस इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कैंसिल हो गया तो ई टॉ बाई एम, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। नेक्स्ट करंट डेंसिटी J, देखो करंट स्केलर है बट करंट डेंसिटी वेक्टर है। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, it is defined as the current per unit area, current density J is I by A, current scalar है but J vector है, अब इसे it is a vector quantity, अब कैसे लिख सकते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I J डॉट ds, J एरिया स्मॉल एरिया लेंगे तो ds हो जाएगा, तो J डॉट ds, देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए करंट स्केलर है बट करंट डेंसिटी इज वेक्टर। सपोज ये एक वायर से करंट फ्लो कर रही है, करंट I इधर फ्लो कर रही है, तो वायर का एरिया वेक्टर इधर है ये, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई करंट I कैन बी रिटन एज J डॉट ds, ठीक है। नाउ फर्दर J इज I बाई A, I वी नो NeAVD होता है, बाई A एरिया कैंसिल हो गया, तो J इज ऑल्सो गिवन बाई NeVD। सो देखो ये लिखा हुआ है नॉर्मल होगा, ये एरिया वेक्टर जो होती है ये, द एरिया बीइंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के एरिया वेक्टर नॉर्मल होती है, एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे करंट उस समय जिधर जा रहा है उसके नॉर्मल लेना है, ठीक है। एक ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई टॉ बाई एम इंटू आई, ई एम इंटू ई अभी कराया था डेरिवेशन, ई टॉ बाई एम इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बाई लेंथ होती है, तो अगर वोल्टेज डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा, Vd इज प्रोपोर्शनल टू V, डबलिंग द वोल्टेज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डबल। लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, सो ऑन डबलिंग लेंथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी हाफ, तो ये ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 by L, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन हियर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1 by L, तो लेंथ को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ आ जाएगा। इट्स ऑल राइट, सी दैट NCERT प्लस कंपटीशन, ठीक है। 7 कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज ए वायर कंडक्टर ऑफ चेंजिंग एरिया, यहाँ एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, बी वोल्टेज सप्लाइड, करंट इधर फ्लो करेगा आई, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो करंट रिमेन्स कांस्टेंट, अगर 2 एम्पियर है तो एवरीवेयर इट विल बी 2 एम्पियर। अदर फैक्टर्स पे क्या असर होगा दैट वी हैव टू सी। सो a constant current pass through a metallic conductor of non-uniform cross section, then number 1 current I is constant, clear हो गया। number 2 current density J, we know that current density J is current per unit area, तो यहाँ पे एरिया कम है तो J ज़्यादा होगा, तो JB is greater than JD, is it clear। थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कम होती जाएगी पॉजिटिव से, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन ED। नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1 by A, वी नो दैट I इज NeAVD, तो VD हो गया I by NeA, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 by A। एरिया यहाँ कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो VDB इज ग्रेटर देन VBD। नेक्स्ट द चार्ज क्रॉसिंग इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, सो QB इज इक्वल टू QD। नेक्स्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, जितनी नंबर डेंसिटी यहाँ पे भी नंबर डेंसिटी पर वॉल्यूम तो मेटल की सेम ही होगी, सो NB इज इक्वल टू ND। एंड रेसिस्टिविटी रो जो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया you are having from class 10 that R is rho L by A, resistive rho is independent of area, ये पे डिपेंड नहीं करता and only depends upon the nature of material, तो rho will be same, ठीक है। so it's a very good example, कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। when a potential difference of 1.5 volt is applied across a wire of length, this length 0.2 meter and area 0.3 millimeter square, a current of 2.4 ampere flows through the wire. If number density N is 8.4 into 10 to the 28 per meter cube, find electric field, current density, current density, drift velocity, relaxation time tau, how long does the electron take to drift from one end of the wire to another,
and free electron mobility. Given mass of electron, you know 9.1 into 10 power minus 31 kg. Charge of electron 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Now number 1 point, find reactive electric field. We know that from electrostatic, electric field is voltage by distance. So voltage is 1.5 volt and length of the conductor is 0.2. Length of the conductor given it is 0.2 meter. So it comes out to 7.5 volt per meter. So ये यहाँ पे electric field create होगी. So this is the value. Second, current density J, current by area. Current is 2.4 ampere. Area is how much? Area is 0.3 millimeter square. तो 0.3 SI unit में 10 power minus 6 meter square आ रहा. Solve करके it will be 8 into 10 power 6 ampere per meter square. Next, third point, drift velocity. We know that I is NE VD. So VD is I by NE. I is 2.4. Given I is 2.4. Number density given 8.4 into 10 power 28. Charge of electron we know 1.6 into 10 power minus 19. Area we have, area is given 0.3 into 10 to the power minus 6. So it comes out to be 5.9 into 10 to the power minus 4 meter per second. ठीक है, तो बहुत स्मॉल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट, रिलैक्सेशन टाइम tau. We know that Vd is E by m into tau. So tau will be Vd m Vd by E m 9.1 into 10 power minus 31 mass of electron. Drift velocity we have calculated just now 5.9 into 10 power minus 4. Charge of electron 1.6 into 10 power minus 19. Electric field we have calculated 7.5. So it comes out to be 4.5 into 10 power minus 16 second. Next, ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया. नॉट टाइम टी. इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी L by Vd. L is 0.2. ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd we have calculated 5.9 into 10 to the power minus 4. सॉल्व करके 3.3 into 10 to the power 2 second. Next, mobility mu we know it is Vd by Vd is 5.9 into 10 to the power minus 4. Electric field is 7.5. We get 7.4 into 10 to the power minus 5 SI. तो कई प्रॉब्लम एक ही में कवर होगी. So it's a very good question.